आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। Yes, sir. लेट मी चेक लेट मी चेक विद गिरे सर, जस्ट गिव मी अ मिनट। टॉपिक डालना था, टॉपिक पढ़ाई हो गया और एक टॉपिक था सर, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। वन वन टॉपिक द नेम वाज गिवन बाय सर, बट दो टॉपिक्स मेरे को जितने याद आए थे मैं डाल दिया था। तो पढ़ाई हुई उसकी सबकी? पढ़ाई हुई क्या दो टॉपिक जो डाला? हाँ सर। Yes, sir. आकाश, राहुल, अभिषेक, शिफा, सृष्टि, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कहाँ थे शिफा लास्ट सेशन में? सृष्टि, हेलो शिफा सृष्टि, आवाज आ रही है क्या आप दोनों को? यस सर। Yes, sir. हाँ, कहाँ गए थे बेटा? सर घर में एक प्रोग्राम था। कम ऑन यार। सर बर्थडे था ना। आपका बर्थडे था क्या? नहीं, भाई का। अरे, अब मैंने क्या क्या रिप्लाई देना चाहिए मेरे को ये बताओ, आप ही बताओ। उस दिन रेज्यूमे का सेशन लिया, फिर अभी पूछोगे कि रेज्यूमे कैसे करना है? Just wait for some time guys, we'll start session in next 5 to 7 minutes। मैं गिरे सर का कॉल वेटिंग पे आ रहा है, तो he will be joining in short time। मीनवाइल जो टॉपिक आप लोग।
So meanwhile, I request one by one to please explain your profile for the self introduction part. So let's start with Akash. Yes, Akash, yes. And those who are going to introduce, they have to turn on their cameras, right? One by one. thank you to giving me आकाश this. आवाज नहीं आ रही. Yes, sir. Hello. Yes. हाँ. First of all, thank you to giving this wonderful opportunity to me to introduce myself. Good morning, all of you. I am Akash Wane. I am I am from Kamti. I and I have co- आकाश थोड़ा बढ़िया एक्टिव और बोल्ड तरीके से जवाब दो. ऐसे मैयत जैसे देगा तो कैसे चलेगा. hello. Yes. Good morning, all of you. I am Akash Wane. I am from Kamti. I have completed my diploma in information technology and currently I am pursuing BTech in information technology from JD College of Engineering. उसके आगे. आकाश. Yes, sir. सर याद नहीं है. तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना भाई. आवाज आ रही है क्या मेरी बाकी. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's move to Shalini. Please introduce yourself. Hello. Hello, yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Sorry, sir. I sir, अब आ रही है आवाज? हाँ. Sir, can you hear me?
Hello. हाँ शालिनी, जम के बोलिए प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. I'm आपके starting again. आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सर 1 मिनट में मोबाइल से ज्वाइन होती हूँ हाँ फिर। ठीक है। ओके, गिरे Good सर, गुड morning, मॉर्निंग। sir. Good morning, sir. ओके, यस अभिषेक। Yes, sir. यस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes, sir. Thank you for the wonderful opportunity, sir, to introduce myself. So, good morning, all of you. Myself, Abhishek Siri Shetty. I have completed my engineering from RGCR, that is under RTML University in Computer Science stream. I have also completed my 6 months of internship under Align Infotech in Salesforce, where I have learned the configuration parts such as creating a lightning app, custom objects standard with the help of custom objects, and applying validation rules, workflows, and creating relationship between the objects, etc. I have also learned the development parts such as trigger, SOQL, SOSL statements to retrieve data. During this time of internship, I've also worked on project, namely student management system, where I've created a database of a student and applied relationships and used configuration settings to it. That's it from my side, sir. Hello, am I audible? Yes, yes, yes. Audible. Yes, Abhishek, are you comfortable related to admin or development? Sir, I'm comfortable to admin for. Suppose I say that how many points given to you in admin from 10. So how many points you give to yourself in admin? Uh, so at this stage, I will give myself 6 out of 10 because I've not thoroughly worked on admin part. But yes, in future I will. And will in development part? Sir, in development, I think I have not that hands-on on development, so I will give it 3 for such because Okay. I have not thoroughly. Okay. Are you work on the formula field? Yes, I work on the formal field, but I can say that it is. I have not. I am not that much into formula, so I have not yeah, confident with Yes. formula fields. What is the I'm not use of confident. just I ask a basic questions to you. Today I Okay, okay, start a basic questions. After that, okay, sir. I'm growing to a higher level positions. So Okay, first of sir. all, what is formula field and what is the use of formula field? Sir, we apply formula fields on. We apply formula fields for. As you can say, we have to give the full name. We have to retrieve full name from an object, so we can tell that first name plus last. We can apply the formula that first name plus last name. It will give us the full name of a student No. or an employee. I just told you Hmm? what is the definition of formula field and what is the use of formula field. Okay. First you Uh, Abhishek, explain the मतलब what do formula you field. understand? What do you understand by the term formula field and applications and uses of formula field? हमेशा याद uh, रखिएगा, हमेशा yes, sir. रखिए, you remember one thing. Suppose anyone asks you the what is the formula field and what are the property of the formula field, first you explain the formula field and the property of of formula field, and then you go to your software, a project, okay, and then explain the project things related to formula. समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, first explain So, a technical definition of formula field as well as the property, and then after that, okay, you explain your project scenario. okay, Okay, okay. you So remember one for thing? Yes, yes, sir. yes. I give you the notes to you formula fields. Yes, 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 yes. Okay, Yes, sir. Yes, just sir. just just this half and page always. You remember one thing.
ओके, हाफ एंड पेज ऑलवेज आस्क यू एनीवेयर, ओके, उसके Okay. ऊपर Okay. नहीं पूछा जाता. सो दैट्स वाई रिमेंबर वन थिंग दैट, हाँ, आफ्टर दैट you take the example from your project, okay, and they explain it. Okay. But Okay, पहले sir. से explain करने की ज़रूरत नहीं है. First you give the technical definition, and after that you start your project operation or scenario base. Okay. Okay, sir. Just I give you the some two important questions to in related to formula field. Basically, two or three questions are asked in a formula field. Okay. Yes, yes, sir. They are So present in the uh, notes, right? Yes, sir. yes, 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 yes. All are the present. Alan sir, अच्छा, एलन सर, वो जो नोट्स थे अपने पास क्वेश्चन ये भी आंसर्स के. फिर वो ये वाले भी कॉमन ग्रुप जो अलाइन का बना हुआ है ना, हाँ उसमें हाँ सभी बच्चे ऐड है, तो उनको शेयर कर दूंगा मैं भी. हाँ 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 हाँ. तो क्योंकि जो अभी इंटरव्यू के प्रिपेयर हो रहे हैं उनको, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उनको नहीं दे रहा हूँ मैं, हाँ, है यस ना. यस, वो जो एक्चुअली इंटरव्यू के प्रिपरेशन मोड में आ गए तो उनको दे दे रहे हाँ, पढ़ते रहे ना तो सर वो क्वेश्चन के ऊपर ही जाते हैं और प्रैक्टिकल करती ही नहीं हैं. वो. तो गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी डेली हर 2 दिन के आड़ में आप लोग के मॉक्स रहने वाले हैं, तो आपको प्रिपरेशन हिसाब से चाहिए, हवा में नहीं चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ. कोई भी घर, सभी लोग, ओपनिंग बहुत बड़ी हुई है और बच्चे नहीं मिल पा रहे, तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा आप लोग को अपनी नौकरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एवरीवन. सो एवरीवन यू रिमेंबर वन थिंग कि हम लोग जो स्टेजेस यूज करेंगे इन इंटरव्यू पोर्शंस, एलन सर विथ मी. सो the first stage is the basic stage, and second one is the advanced stage, and third one is the company scenario based questioning are there. Okay. तो जैसे आज मैं फार्मूला फील्ड्स अपने को बताने वाला था, दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस. लेकिन वेडनेसडे के दिन हम लोग क्या करेंगे, कंपनी में जो सिनेरियोज दिए जाते हैं और इंटरव्यू बेस्ड जो एचआर लेवल पे सिनेरियोज दिए जाते हैं, दे हैव द एक्सपीरियंस मोर देन 2 years. तो इस तरह से दिए जाएंगे आपको. ओके. हाँ, लेकिन उसका एक प्लेटफॉर्म आपको एक दिन पहले आपको दिया जाएगा, मतलब सडनली आप वर्क नहीं कर सकते हो, तो हम लोग देंगे आपको. नो डाउट आई गिव द 10 सिनेरियो टू यू, बट उसमें से मैं पूरे सिनेरियो सॉल्व करके नहीं दूंगा. ओके. आई गिव यू द 2 or 3 सिनेरियो. मतलब आई यूज अकाउंट, बिकॉज देखिए, एक रिमेंबर वन थिंग दैट कि HR will ask you the question on a standard objects only, just like account, contact, case, opportunity, leads, some 6 to 8 component of sales cloud आपको जो पूछे जाते हैं. यू रिमेम्बर वन थिंग. ओके. सो मैं उसी के बेस के ऊपर आपको क्वेश्चंस ले लूंगा आपको. ओके. तो हम लोग 10 सिनेरियोज देंगे आप लोगों को. जैसे अभी वेडनेसडे को क्लास लेंगे या थर्सडे को हम लोग नेक्स्ट मॉक लेंगे, तो मैं कल ही आप लोगों को अपलोड कर दूंगा. 10 सिनेरियोज दूंगा, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 से 4 सिनेरियो, जैसे अकाउंट 1 सिनेरियो कवर करूंगा, कॉन्टैक्ट का, केस का, अपॉर्चुनिटी का. इज इट क्लियर? ओके. बट बाकी के 2 सिनेरियोज आपको करना है, क्योंकि मैं ही सब कुछ दे दूंगा तो आपका दिमाग नहीं चलेगा. ओके. सो इस तरह से हम लोग वर्क करेंगे, और एक दिन में हम लोग 2 पोर्शंस लेंगे. समझ में आ रहा है? जैसे फॉर्मूला फील्ड्स एंड वैलिडेशन रूल्स, 2 चीजें हम लोग लेंगे. आफ्टर दैट गुरुवार के दिन आप लोगों को उसके बेस के ऊपर का सिनेरियो बेस का वर्किंग करना है. इज इट क्लियर? या उसी के प्रोसेस, उसके बाद हम लोग थर्सडे के दिन हम लोग या फ्राइडे के दिन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सिनेरियो लेंगे ऑन वर्क फ्लो एंड द प्रोसेस बिल्डर. ओके. और उसमें थ्रू आउट पहले बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक 1 घंटा आपका चलेगा, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, बाद में बोलेंगे कि यस, ओपन योर ऑर्ग एंड स्टार्ट राइट डाउन राइट. द सो वर्क. गाइस, और इसकी ये प्रोसेस होने के बाद आई एम गोइंग टू. हेलो एलन सर, नॉट हेलो. हेलो किरे सर, अभिषेक. यस सर अभी जो चल रहा है, यानी वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर तो चल ही रहा है. पाएंगे उसमें अगर ओके होने के बाद आपके 2 इंटरव्यूज रहेंगे फ्रॉम द इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स. हाँ सर. एलन सर, आपका आवाज नहीं आ रहा था, बीच में कट गया था पूरा. हेलो. यस. हाँ हाँ. सो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये प्रोसेस से जो बच्चे जो अपने पास फिल्टर होते जाएंगे धीरे धीरे, जो अच्छा डिलीवर कर पाएंगे, उनके अपन जो HR जो मेरे कंसल्ट में जो ऑलरेडी एक्सेंचर में जो है कलीग्स जो ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं, है ना, तो इन वो लोग दे विल गोइंग टू कंडक्ट देयर इंटरव्यूज, जो ऑलरेडी 8 साल से बैठे हुए हैं, हाँ है हाँ ना. हाँ हाँ.
वो जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते जाएंगे अपने साइड वो से कि इनका ओके है तो अपन इनको कंपनी पर्सन हाँ करवाएंगे। यस इसमें जाके यस मैं भी यस क्लियर कर दे रहा हूँ कि कोई भी आके पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं करना मेरे को कि सर मेरा करवा के दो। मैं जिसका डिलीवरेंस ये वाले सेशंस में अच्छा रहेगा बाय डिफॉल्ट उनका नाम करूंगा। देयर इज नो पार्शियलिटी एंड देयर इज नो कंपैरिजन। आपका सिंसियरिटी, आपका डिलीवरेंस ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। मैं खुद ही आपके नाम आगे रिकमेंड करके रेज्यूमे भेज देंगे हम लोग। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो सिंसियरिटी आप लोग को ये जो सेशंस होंगे मॉक वाले उसमें करना इम्पोर्टेंट है। राइट। तो सर आप आपके ऊपर अभी आप आज के दो टॉपिक के ऊपर ले लीजिए। हाँ। और दूसरी चीज ये बता रहा हूँ कि ज्यादा थ्योरेटिकल मत जाइएगा आप लोग, क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर जाइएगा। थ्योरी बहुत रहेगी क्योंकि नेट पे थ्योरीज बहुत अवेलेबल्स है। इज इट हाँ क्लियर? और आज मैं शाम को क्या करूँगा, क्लास जब चलेगा तो आपको वीडियो से नोट्स बनाना सिखाऊंगा। वन लाइन नोट्स। ओके, वन लाइन नोट्स ये आपके तरीके से लिखाए जाते हैं। ओके, क्योंकि आपका वर्किंग आपको किस लेवल पे समझ में आ गया उसके बेस के ऊपर आप वो क्वेश्चन लिखाओगे। क्योंकि देखो यहाँ पे 14 लोग हैं तो 14 लोगों के अलग अलग नोट्स बनेंगे। हाँ, आई गिव द बेसिक थ्योरी टू यू। ओके, जिसमें पूरा कवर अप किया जाएगा व्हाट इज प्रोसेस बिल्डर एंड एवरीथिंग एवरीथिंग। ओके, उसके बाहर की थ्योरी नहीं पूछेगी, लेकिन क्वेश्चन जब पूछ लिए जाएंगे ना तो दे आर जमलिंग क्वेश्चंस। ओके, मतलब 2 से 3 टॉपिक्स, प्रोसेस बिल्डर में 11 टॉपिक्स है तो 11 टॉपिक्स में कंबाइन कैसे क्वेश्चन पूछेंगे ये नहीं बता सकता हूँ ना मैं। तो 11 टॉपिक्स में से पूरे टॉपिक्स का थ्योरेटिकल वे से एक बेसिक आपको दिया जाएगा 3 या 4 पेज का। लेकिन क्वेश्चन आंसर जो बनेंगे ना उसमें, तो अभी अपन ग्रुप बनाएंगे। जैसे भी आपका सर ने एक ग्रुप बना दिया, ओके, तो रोज सुबह जब गुड मॉर्निंग बोलते हो तो दैट टाइम हम लोग टॉपिक देंगे। जैसे फॉर्मूला फील्ड के ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखना है, लेकिन पहले क्या करना है, उस ग्रुप में जाना है, उस दिन के क्वेश्चन देखना है और वो क्वेश्चन छोड़ के एक नया क्वेश्चन आपको देना है इन लोगों को। और नीचे उनके नाम लिखना है कि जैसे एग्जाम्पल तौर पे श्रुति। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर श्रुति देंगे। हाँ, लेकिन अभी सब जन श्रुति को नहीं पूछेंगे, वो ग्रुप में देखेंगे। तो इस तरह से गुड मॉर्निंग बोलोगे आप लोग। ओके, और एक आफ्टरनून में एक क्वेश्चन डालोगे और उसके नीचे नाम दोगे आप लोग एक जन कि वो उसका आंसर दे। और एक एट नाइट आप क्वेश्चन डालोगे 8 या 9 बजे। तो इस तरह से आप लोग दोगे तो 10 लोग रहेंगे तो आपके पास नियर अबाउट 30 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। ओके, और वो थ्योरेटिकल रहेंगे, सिनेरियो बेस्ड नहीं डालेंगे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस डालना है तो वो हमको देंगे, हम वेरीफाई करेंगे। नहीं तो कभी कभी सिनेरियोज इंटरनेट नेट के ऊपर गलत आते हैं। सो दैट्स व्हाई यू रिमेंबर वन थिंग। ओके, तो वो मुझे भेजोगे, एलन सर को भेजोगे, उसके बाद उसको अप्रूवल करेंगे, बाद में आप लोग प्रोसेस कर सकते हो। और हम लोग जब वो सिनेरियो डालेंगे तो नीचे आपका नाम लिखेंगे। ओके, कि ये सिनेरियो अभिषेक का है करके। तो इस तरह से ग्रुप स्टडीज की जाती है। ओके, 14 दिमाग है तो 14 दिमाग से अलग अलग चलेंगे, तो आपके पास रोज क्वेश्चंस आएंगे उतने। ओके, और जितने मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना ही। और ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइट होके स्टडीज करने के जगह पे जितना नॉलेज है अपने पास उतना ही वर्क करोगे। दूसरी चीज मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, कंपनी जब जाओगे ना तो यू रिमेम्बर वन थिंग। इज इट क्लियर? आप जो रिज्यूमे में लिखोगे वही पूछा जाएगा। आपने लिख लिया बाकी आई डोंट नो अबाउट दैट इंटीग्रेशन। ओके, आई हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट इंटीग्रेशन, आई एम द लर्नर इन द इंटीग्रेशन, तो तुमको वही पूछेगा वो। 5 साल के एक्सपीरियंस वालों को उन्होंने बोल दिया कि यस आई एम नॉट वर्किंग ऑन द इंटीग्रेशन, आई जस्ट अ लर्निंग फ्रॉम गूगल। सो उतने ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन आपने बताया कि यस आई एम द थ्रू आउट नॉलेज अबाउट द वीएफ पेजेस, तो आपको डिटेल में पूछेगा। सो आपको क्या क्वेश्चन पूछने वाला है एचआर, वो आप ही उनको बता रहे हो। ओके, सो आपका रिज्यूम एलन सर बहुत प्रॉपर वे से रिप्रेजेंट करवा के देंगे। और वो ऐसा नहीं है कि जनरलाइज करवा के देंगे। वो हर रिज्यूम बनाना सिंपल बात नहीं होता है, वो एलन सर ही करेंगे वो, और बहुत प्रॉपर तरीके से वो करते हैं। क्योंकि एक बंदे को कम से कम 4 से 5 दिन लगता है, हफ्ता लगता है एक रिज्यूम बनाने के लिए, क्योंकि उसको लर्न करके बैठ के हमको बताना पड़ता है कि इसको किस में नॉलेज है किस में नहीं है, उतना आपको एक्सप्लेन करके देना पड़ता है। और प्रोजेक्ट में भी हम लोग वही टॉपिक डालेंगे जिसको इसको नॉलेज है। सो हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा, हमको फॉलो कीजिएगा, हम आपको आउटपुट देंगे। लेकिन वही है कि आप लोग इंटरनेट पे जाओगे और देखोगे तो उसकी मेथोडोलॉजी अलग है, हमारी मेथोडोलॉजी अलग है, तो वो फॉलो होना चाहिए। अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा कि उनका भी आउटपुट वही मिलेगा, हम लोगों का भी आउटपुट वही मिलेगा। बट हम लोग प्रोसेस करते वक्त वो जो जिस प्रोसीजर से लेके जाते हैं उसको फॉलो कीजिए आप। और प्रॉम्प्ट रहिएगा,
सर जो बोलते हैं इंट्रोडक्शंस प्रॉपर वे से दीजिएगा, कम्युनिकेशन सर ही हैंडल करेंगे, उनके सिवा नागपुर में तोड़ नहीं है, बट वही है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और टाइम दीजिए। तो मैं अभी चालू करेंगे हम लोग। यस, Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। अभिषेक, आकाश, आकाश टोहानी। आकाश थोड़ा सा लो साउंड कर रहा है अच्छा अच्छा सर, अच्छा, थोड़ा सा अपने को इन पे कोई शिल्पा और पर ध्यान देना है। आवाज नहीं आ रहा है सर, आपका पुराने प्रॉपर, आपका प्रॉपर आवाज नहीं आ रहा है, कट हेलो कट हेलो के आ रहा सर, अभी आ रहा है? है। नहीं नहीं नहीं, कट के आ रहा है। हाँ कट के आ रहा है, सेंटेंस छूट जा रहा है बीच हाँ, में। हाँ, शिल्पा और सृष्टि पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, थोड़ा मतलब श्रुति, श्रुति और शिफा शिफा। शिफा ना, ओके ओके ओके। शिफा, शिफा और श्रुति, आप मुझे क्या करोगे, 2 o'clock फोन करोगे आप लोग। सर इनका मैं 2 o'clock ले लूँ क्या, एक सेपरेटली मॉक उनका? हाँ चलेगा चलेगा क्योंकि चलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका हो चुका है तो मैं उस लेवल का पूछता हूँ उन लोगों को, है कि नहीं? ओके, आज मेरे पास है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो हम लोग इंटरव्यूज लेंगे ना, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो देने के बाद उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ भी पूछे ना, नो डाउट कि मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा तो डेफिनेटली वही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको यू नो दैट द सिनेरियो, ओके, तो आप कर सकते हो। और वो यही देखते हैं कि आपने एग्जैक्टली देखिए, हम लोगों को अभी एक सिनेरियो मिला है LWC का, उसको एक सिनेरियो बना हुआ है, एक सिंगल पेज है, उसको हमको दिए हुए 381 आवर्स दिए हुए हैं। लिसन हियर, 381 आवर्स दिए हुए हैं, और उसमें 6 लोग काम कर रहे हैं, और 6 लोगों को 381 आवर्स दिए है। मतलब नियर अबाउट, सोच लीजिए आप लोग कितना है, 1 महीने के ऊपर 2 महीने का टाइम दिया हुआ है। तो डेफिनेटली वो आपको 30 मिनट्स में जज नहीं करता है, और कोई भी इंटरव्यू सेशन 30 मिनट्स का रहता है, लेकिन वो 1 घंटे तक चलता है। क्लियर हो गया आपको? जितना ज्यादा इंटरव्यू चल रहा है आपका, तो समझ जाइए कि आपके चांसेस अच्छे हैं। ओके, और रुकना नहीं है। और जैसे 10 क्वेश्चन पूछे, उसमें 2 क्वेश्चंस को आपने सीधा नहीं भी बोल दिया कि नहीं मुझे ये पता नहीं है और मैंने इस टॉपिक के ऊपर वर्क नहीं किया है, तो आपको वो पूछेगा ही नहीं तो अदरवाइज वो वही लेवल पे नीचे लेके जाएगा आपको। ओके, और आपके क्वेश्चंस के अंदर ही, आपके आंसर्स के अंदर ही नेक्स्ट आंसर रहेगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कंफर्टेबल हूँ फार्मूला फील्ड के ऊपर, तो उसको तुम ज्यादा खींच सकते हो, तुम खींच सकते हो। अब मैं बताऊंगा कैसे खींच, उसको बात कर सकते हो। ओके, आपको लग रहा है कि यू आर कंफर्टेबल ऑन द शेयरिंग एंड सिक्योरिटी, तो उसके ऊपर आप लोग बोल सकते हो ज्यादा। ओके, तो किस तरह से लेके जाना है फ्लो, बाद में एलन सर भी एक स्टूडेंट है उनका, अभी ज्वाइन किया हुआ है, तो वो भी आ जाएगा, वो भी आपको वर्क करेगा। चलिए, तो जस्ट अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अनिक अनिकेत फटिंग, यस। गाइस आज सबको रिस्पॉन्ड करना है, मॉक के लिए ज्वाइन करो सेशन रियल। Yes, sir. यस, यस। सो देखिए, क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते फर्स्ट डे, इट्स ओके, बट यू राइट डाउन दैट क्वेश्चंस ओके प्रॉपरली। इज इट क्लियर? तो जस्ट दीज आर द बेसिक्स, मतलब जो बोलते हैं ना, वाइवा वाइवा की समझ लेके जाएंगे, और लेकिन आगे अपडेट करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी ये क्वेश्चन पूछते नहीं, लेकिन वार्म अप तो करने के सर लिए हम लोग। जिसका भी नाम लेंगे चुपचाप सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे गाइस, मतलब ऐसा नहीं होना कि सर चिल्लाए जा रहे हैं और हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। यस। प्लीज मेंटेन सम प्रोफेशनलिज्म प्लीज। अनिकेत, व्हाट इज द यूज ऑफ फार्मूला फील्ड? हेलो अनिकेत, प्रियल आपको आवाज आ रही हो? आपको बोल रहे हैं प्रियल, अनिकेत आपका नाम है। अनिकेत फटिंग। देखिए, प्रियल इसमें एक सीधा बात बता दो, नहीं आता तो डायरेक्ट नो बोलिएगा। इसमें क्या होता है Yes, कि, sir. यस, प्रियल आप यहाँ एक्टिव रहिए, सेशन कैमरा ऑन करिए प्लीज। Yes, sir. अनिकेत लिखा हुआ है शायद। सर प्रियल नाम है सर, हाँ हाँ, अनिकेत उनके हस्बैंड के नाम से लॉग इन होते हो। ओके 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 ओके, मैम इज देयर ना। ओके मैडम, व्हाट इज द यूज ऑफ फार्मूला फील्ड एंड व्हाई द यू यूज द फार्मूला फील्ड? Used to put formula. नहीं नहीं नहीं, ओके ओके ओके। एंड वेयर यू वर्क इन योर प्रोजेक्ट, जस्ट गिव द Yes, एग्जांपल।
Anyone example? लीव मैनेजमेंट सिस्टम। यस यस। तो आपने फार्मूला फील्ड यूज किया होगा ना आपने? हाँ सर। सो जस्ट टेल मी, इंग्लिश में बात करेंगे, ओके? तो जस्ट गिव मी द सिनेरियो एंड टेल मी द सिनेरियो, ओके? व्हाट इज द प्रोसीजर टू फॉर्म वन फार्मूला फील्ड? Okay, suppose yes, I give the scenario to you, so you solve it scenario, all of you, everyone to know the formula field. Hello, Kaustik, Rahul. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. all of you open your arc, open your arc, okay? Just और tell me, खुलिए सब लोग सभी जन आर्क ओपन कीजिएगा, सभी जन अपने अपने आर्क्स ओपन कीजिएगा, साथ में ओके? यस। मैं एक साथ में सीनियर, हेलो, देखिए, हम लोग अभी कैसे, यू आर नॉट कंफर्टेबल फॉर द थेरोटिकल वे, यू आर वर्किंग ऑन द प्रैक्टिकल, आई नो दैट। सो आई गिव द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस टू यू। और हम लोग एलन सर, इनका हम लोग परसों के दिन मॉक लेंगे थेरोटिकल, और मैं उनके राइट। क्वेश्चन आंसर्स मैं दे देता हूँ इनको, लेकिन उसके बाद नहीं चलेगा उनको कि मेरे पास क्वेश्चन नहीं, कैसे बोलूँ क्या बोलूँ। तो इनको मैं क्वेश्चन आंसर आज दे देता इनको, फार्मूला फील्ड और वैलिडेशन रूल्स के और तो अभी रिलेशनशिप के। रफ रफ कुछ क्वेश्चंस लेके एक आइडिया आ जाता है उनको, और हाँ, नहीं उनको नहीं फिर नहीं, अपनी क्वेश्चन दे अभी मैं दूंगा। देता मतलब पूरे ही क्वेश्चन देता हूँ उन लोगों को, तो लेकिन उसमें से ऐसा रहेगा कि आई गिव द 10 क्वेश्चंस टू यू, टू दिस पर्सन, उसमें से 6 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा और 4 के आंसर उनको देखना है, ओके? तो इस तरह से अपन करेंगे। तो आज यू एवरीवन टू नो दैट यू आर एवरीवन कंफर्म कंफर्टेबल ऑन योर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। सो आई गिव द क्वेश्चंस टू यू एंड यू सॉल्व इट, और मुझे उसके आंसर्स आप लोग देंगे। क्लियर हो गया आपको? ओके, ओके। Yes, sir. चलिए, तो हम लोग आज अपन एक वैलिडेशन रूल्स और फार्मूला फील्ड के ऊपर हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। सो यू रिमेंबर वन थिंग, आई गिव द वन वैलिडेशन फॉर यू, तो मुझे ये बना के दोगे आप लोग, ओके? चलिए, लिसन हियर। सर को टास्क दिए क्या इनको हाँ, यस गाइस? सर, यस। आप अपना ये जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, कमेंट बॉक्स, वो कमेंट बॉक्स ओपन कीजिएगा, वहाँ पे मैंने आपको टास्क दिया हुआ है। इज इट क्लियर, या मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूँ आपको? Sir, please share your screen. यस यस यस, आई शेयर माई स्क्रीन, ओके? उसके ऊपर मैं टास्क दिया हुआ, ये टास्क मुझे आपको सॉल्व करवाना है, और आई गिव द 15 मिनट्स 10 मिनट्स टू यू, ओके? उसके बाद सेकंड सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो, फोर्थ सिनेरियो, आपको उसके बाद कभी तकलीफ नहीं जाएंगी वैलिडेशन रूल्स के ऊपर, Okay, sir. ओके? ओके सर। वेट अ मिनट, ओके?
हमने ये कमेंट लाइन में भेजा हुआ है, तो हम लोग देखिए वैलिडेशन रूल्स बनाना चालू कीजिए। आप लोग, दिया हुआ है मैंने वैलिडेशन रूल्स, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में देखिएगा एंड स्टार्ट द वैलिडेशन रूल्स। ओके, यस सर। देखिए आप, मैं आपको एक बता देता हूँ। दिस इज योर फर्स्ट वैलिडेशन रूल्स, सो यू रिमेंबर वन थिंग, इन अकाउंट ऑब्जेक्ट देर इज नो field of amount. Yes or no? Yes, there is no field of amount. So first you create one custom amount field in your account. Okay, and then write down the validation rules. Okay, यस सर। validation rules में ये दिया हुआ है कि if your salary is 10,000 ना, yes, if your salary is if your amount greater than 10,000 तभी account create होगा। Yes, if amount is less than 10,000 then show the error, sufficient amount is not available in your account. Okay, ये क्वेश्चंस आया हुआ है विप्रो में, जस्ट आप बनाइए इसमें। ओके, वैष्णवी, Yes, sir. from next mock onwards, you will going to coordinate with Gire sir. Okay, sir. Okay, sir. Vaishnavi will be going to coordinate with you for all the mock sessions. ओके सर, ओके सर, ओके सर। Okay guys, any problem just tell me. Okay, सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, आपने टास्क नहीं दिया नहीं क्या? नहीं, दिया दिया इनको, मैंने शेयर नहीं किया, कमेंट में दिया हुआ है इनको सबको। अच्छा, क्योंकि सर डन तभी, सर। यस यस, डन, Yes. वेरी गुड। वन, आपकी स्क्रीन शो कीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए, 5 सर मिनट। एक्चुअली डन सर। मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। ओके ओके ओके। तब तक नहीं चलेगा। हाँ सर, तो हाँ ठीक है सर। तो सर हाँ, लैपटॉप पे कनेक्ट रहे। लैपटॉप पे कनेक्ट हो रहे आप लोग? चलिए, हो गया, किस किस का हो गया? यस सर, हो गया। हम्म, चलिए,
Just clear it. Yes, sir. Yeah, show me. बता, एडिट करो, एडिट करो ना, यहीं पे है। हाँ, वहाँ शो होता है greater than 10,000. Amount is less than 10,000. Yes, very good. Okay. चलिए, बाकी सभी का हो गया क्या? Just I give you the second scenario to you. Okay. वो स्क्रीन को ये कर दीजिए बेटा. Yes. Okay, okay. Just I give you the second scenario to you. Okay. So do fast. Okay. ये आया हुआ है, परसिस्टेंट के लिए पूछा गया था. So take it on. फैमिलियर हो जाते हैं हम लोग, मतलब आपको दिमाग चलते रहेगा आपका. ओके, यही रहता है मेन. उसके बाद अपन थियोरेटिकल क्वेश्चन पे जाएंगे. इज इट क्लियर? ओके, चलिए सेकंड. यस, हमने भेज दिया है सेकंड. ओके, वेरी गुड. कंट्रोल वी, सेंड इट. चलिए बनाइए ये, मैं भेजता हूँ. 5-5 मिनट में बनाएंगे आप लोग. ओके, जिसको नहीं जम रहा है जस्ट टेल मी, आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर्स टू यू. हो गया?
सर यस। सर ये समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। चलिए मैं बता देता हूँ। व्हाट इज वैलिडेशन दैट अमाउंट एनुअल रिन्यूअल रेवेन्यू इज नॉट नेगेटिव। ओके, आपका अकाउंट के अंदर यू चेक दैट कि वन वन एनुअल रेवेन्यू field is available. Okay, so this is the amount field. So that's why उन्होंने क्या बोला है कि उसमें निगेटिव मतलब निगेटिव अमाउंट नहीं डालना है। निगेटिव अमाउंट डालोगे तो दैट टाइम आपको एरर शो होना है। इतना क्लियर हो गया आपको? हेलो, यस सर। ओके। और दूसरा उसने क्या किया है, 10,000 100 के जगह पे अपन 10,000 डाल देते, बिलियंस का आपको पता नहीं चलेगा हाउ मेनी जीरोस ऑन द बिलियंस। ओके, मैंने भेज दिया है यहाँ पे। तो और डज नॉट एग्जिस्ट 10,000 बिलियंस, बिलियंस की जगह पे 100 की बिलियंस की जगह पे 10,000 रुपीज डाल दीजिए वहाँ पे। ओके, तो ये मुझे आपको करके देना है। समझ में आ रहा है? यू गो टू द एनुअल रेवेन्यू और वहाँ पे आप लोगों का समझ में आ गया आपको? अमाउंट इज नॉट नेगेटिव। हेलो, यस सर। ओके ओके, चलिए वेरी गुड, क्लियर इट। चलिए वेरी गुड। सो ऑल ऑफ यू नो दैट एवरीथिंग किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों को। ओके, 30 वाले क्वेश्चंस में भेजूंगा तो आज आप प्रैक्टिस कर लोगे क्या? यस। देखिए आज हम लोगों ने नहीं किया, Yes, sir. वैलिडेशंस के ऊपर और फॉर्मूला फील्ड के ऊपर अपने काम कर लिया ना, और वो क्वेश्चंस आप लोग और वो जो है वो अपने पास रखिएगा। अभी मैं आपको जो दूंगा ना उसको अच्छी तरह से पिंच कीजिएगा और वो अपने पास रखिएगा। समझ में आ गया आपको यहाँ पे? ओके, चलो जस्ट उसके बाद क्योंकि हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं दिए तो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, तो मैं आपको बता दूंगा। इट्स ओके। ओके, Shalini Verma, just tell me why the formula field is used. Why the validation rule is used in your software? Sir. Good morning. Why the validation rule is used in your software? What is the purpose of validation rule? What is the Validation rule is yes, validation rule is used to check for a specific formula we apply or a specific condition we apply in our object and the field, so that the user doesn't enter a wrong or invalid value. If he errors an invalid or wrong value, then it shows the message so that he corrects his value and then enter according to our specific criteria. This is the purpose of the validation rule. yes. Very good, very good. Shifa, Yes, sir. what are the properties of the validation rules? Shifa, can you edit the validation rules? Hello. Yes, Okay. sir. Yes. Okay. Validation field is a read-only field or editable field? Editable. Shalini Verma? Sir, it is a read-only field. We Yes, cannot edit directly. It evaluates from the field which we have given in the formula, and then according to that it is based on that value. We cannot edit it directly. Okay. Very good. Okay, Vaishnavi? Yes, sir. Yes. What is the purpose of formula field? So formula fields are used to calculate a specific value in our application, and formula field will be a read-only field whose value will be based on our source field to perform some calculations and display the calculated value in the formula field. Okay. And one sentence is add in that formula field. By using the formula field, you customize your work इन अ फार्मूला फील्ड। ओके, फार्मूला फील्ड में आप लोग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज मतलब आपको कोई भी तरीके से उसको चेंजेस कर सकते हैं आप लोग। ओके, सोर्स फाइल को लेके तो कस्टमाइज ये वर्ड यूज कहीं तो भी कर लीजिएगा आप लोग। ओके एंड गिव द एग्जांपल। और जब ये इस तरह से रहता है ना ऐसा क्वेश्चन, तो यू गिव द वन एग्जांपल
ओके, एंड दैट एग्जाम्पल रिलेटेड टू अकाउंट कॉन्टैक्ट, इसके रिलेटेड होना चाहिए. ओके, नॉट टू बी रिलेटेड योर कस्टम ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज दे डोंट नो ना विच कस्टम ऑब्जेक्ट यू टू वर्क ऑन दैट, है ना. सो आपको नहीं पता है ना उसको कौन से कस्टम के ऊपर. तो यू वर्क और यू एक्सप्लेन योर एग्जाम्पल और इफ यू एक्सप्लेन योर सिनेरियो ऑन योर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स ओनली. ओके, सो एक एग्जाम्पल दीजिए मुझे फार्मूला फील्ड के ऊपर, and on a account or on a case, on a contact or an opportunity or leads. Okay. So for example, if we apply so formula field, na? Yes, formula field. Okay. Okay, so if we in account object we have a field called annual revenue. So if we want to calculate the revenue, we can use a formula field to calculate using all the using all the calculations or the all the revenues of our organization, and totaling them means adding them, and then we can the annual revenue will be displayed through formula field. This is an example from accounts. And for example, if we want to calculate for other standard objects, so नहीं, just example. Yes, okay, very good. You remember on again one thing is that कि आप लोगों को जो वर्किंग बताया हमने, और एक अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करवा के दूंगा फार्मूला फील्ड के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा, और उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप लोग बाय रिलेटेड योर एजुकेशनल. तो अभी देखिए, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हम लोग प्रोजेक्ट्स के बारे में बोलते हैं ना इंट्रोडक्शन के वक्त, तो उनको ऐसे नहीं बोलेंगे. सो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें कि आई वर्क ऑन वन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बेस. ओके, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे बताएंगे. ओके, यू नॉट वर्क ऑन द स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम. इज इट क्लियर? और वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं कि व्हाट इज योर यूआरएल ऑफ योर प्रोजेक्ट्स. यूआरएल का मतलब होता है कि आपका क्लाइंट कौन सा है, कौन सा. तो कभी उनको बताएंगे नहीं, क्योंकि ये पॉलिसीज रहती है. वो पॉलिसीज नंबर में बता दूंगा. आईटी का, आईटी मतलब कंपनी पॉलिसी रूल रहते हैं कि आप लोग उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते. वो यही चाहते हैं कि ये शो करेंगी तो रिजेक्ट हो जाएंगे आप लोग. क्लियर हो गया? आपको शो नहीं कर सकते. कल जाके तुम इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, उस कंपनी में सिलेक्ट हो जाएगा, दूसरे कंपनी में जाओगे तो तुम्हारा उस कंपनी का और तुम किसी और को दिखाओगे, है कि नहीं. तो ऐसे वक्त नहीं बोलेंगे यूआरएल. सर सॉरी सर, मैं शो नहीं कर सकती यूआरएल बिकॉज ऑफ आईटी रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, सो फॉर्मूला फील्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ, some basic questions are always asked to you, but maximum they work on the scenario base. Okay, वो बोला जाता है कि मुझे बताइए इस तरह से कैसे वर्क करोगे, क्या करोगे. तो ये मैं क्वेश्चंस आपको मैं दे दूंगा. इज इट क्लियर? तो जस्ट मैं एक सिनेरियो बेस आपको मैंने सिंपल बता दिया वैलिडेशन रूल्स में कैसे होता है. तो वैसे ही मैं क्या करूँगा कि अकाउंट के ऊपर, ऑल ऑफ यू रिमेंबर वन थिंग, अकाउंट के ऊपर मैं क्या करूँगा, आपको 3 से 4 सिनेरियो दूंगा और 2-3 सिनेरियो आपको करने के लिए बोलूँगा. तो आज आप लोग क्या करोगे, सिर्फ फार्मूला फील्ड और वैलिडेशन रूल्स के ऊपर काम करोगे. इसके बाद वैलिडेशन रूल और फार्मूला फील्ड के ऊपर ज़्यादा देखोगे नहीं, पहली चीज़. और अभी आपको नोट्स बनाना है तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ. बहुत जन बोलते हैं कि सर हमको नोट्स नहीं दे रहे प्रॉपर से. मैं वापस बता रहा हूँ, नोट्स दूंगा ना तो 50 पेज सिर्फ फार्मूला फील्ड पे रहेंगे. तो मुझे बताओ 50 पेज अपन फार्मूला फील्ड के ऊपर वर्क करेंगे क्या? हर जन अलग अलग तरीके से वर्क करता है ना. तो हमको बेसिक क्वेश्चंस, थ्योरी कभी भी एक पेज के ऊपर नहीं रहनी चाहिए. तो जब नोट्स बनाओगे फार्मूला फील्ड के और वैलिडेशन रूल्स के, तो कभी भी याद रखिएगा एक बंच में आप फार्मूला फील्ड और वैलिडेशन रूल्स लगाओगे आप लोग. ओके, ये आपका पहला बंच रहेगा, फर्स्ट बंच. उसके बाद आपका सेकंड बंच रहेगा रिलेशनशिप वाला, तो मैं भी वो आपको दे दूंगा विद सिनेरियो क्वेश्चंस. तीसरा जो रहेगा आपका डेटाबेस का, डेटा लोडर का रहेगा. यस, ओके. चौथा आपका जो रहेगा आप लोगों का, वो रहेगा शेयरिंग एंड सिक्योरिटी, वर्क फ्लो एंड शेयरिंग एंड सिक्योरिटी का. पांचवा जो रहेगा वो आपका रहेगा वर्क फ्लो, प्रोसेस बिल्डर और फ्लोस का. और 6 वाला जो रहेगा आप लोगों का, वो रहेगा रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड का. ओके, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड और पेज लेआउट, ऐसे रहेंगे आपके 6. और 7वां जो रहेगा वो इंट्रोडक्शंस ऑफ एडमिन. इस तरह से आपके नोट्स रहेंगे. वो नोट्स को आपको रिप्रेजेंट करना है और उस तरह से बनाएंगे. तो उसमें देखो, जैसे अभी आप
फॉर्मूला फील्ड और वैलिडेशन रूल जो रहेंगे ना आपको, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि पहला पेज में आप लोगों का फॉर्मूला फील्ड का जस्ट आपकी थ्योरी रहेगी। ओके, उसके पीछे जो आपके दो पेजेस जो रहेंगे वो थ्योरी क्वेश्चन एंड आंसर्स के रहेंगे आपके। ओके, और उसके पीछे जो रहेंगे वो सिनेरियो बेस्ड रहेंगे। अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का क्या करोगे आप लोग कि आप लोग, जैसे मैं एग्जांपल तौर पे आपको दिखा दूं क्या एक मैं कैसे बनाता हूं, तो यस Yes, sir. यस आई शो दैट। देखिए बेटा, मैं एक सिंपल बता देता हूँ कि मैं तो आपको हेल्प करूंगा, बट अभी यू आर मैच्योर्ड, सो आपको भी अभी वर्क करना है। ओके, सिर्फ एलन सर का गाइडेंस लेके आप लोग, आपका ज्यादा से ज्यादा आप लोग जैसे जितने भी पुराने लोग हैं 105 106 के, हफ्ते में कम से कम 6 इंटरव्यू कॉल्स आपको आने चाहिए। इस तरह से आपका रिज्यूम बनाइएगा। जितने कॉल लोगे ना आप लोग, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, देखिए मैंने कैसे बनाया है यहाँ पे, देखिए इस तरह से आप लोग बनाएंगे। और बहुत सारा डेटा नहीं लेके आएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ओके, आप अपने तरीके से देखिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, देखो मैंने वैलिडेशन रूल लगाया, अकाउंट नंबर लेंथ। ओके, डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन वैलिडेशन द अकाउंट नंबर इज एग्जैक्टली 7 डिजिट्स। ओके, 7 डिजिट दिया हुआ है। और उसके बाद उन्होंने बोला है, यहाँ पे देखिए 7 डिजिट्स दिया हुआ है। ओके, द सिंपल इलेवेशन, और उन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है। देखिए, तो देखिए आप लोगों ने फार्मूला बनाया रहता है ना, तो आपने क्या किया रहता है, लेंथ को काउंट किया रहता है लेस देन इक्वल टू 7। यस और नो? ओके, तो कभी भी याद रखिए, माई स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो कभी भी याद रखिएगा, हम लोग कभी भी सबसे पहले याद रखिएगा, वो हमेशा एंड में ही कंडीशन रहती है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि आपको क्या बोला है उसने कि योर अकाउंट नंबर इज एग्जैक्टली 7 डिजिट। तो अभी हम लोग कंपनी में जब वर्क करेंगे ना, इफ इट इज नॉट ब्लैंक, तो अपने को दो कंडीशन चेक करना पड़ेगा, कभी भी याद रखो। ओके, वो ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, और ब्लैंक नहीं रहने के बावजूद भी वो 7 डिजिट के ऊपर और नीचे नहीं रहना चाहिए। क्लियर हो गया? तो जब भी अपन फार्मूला फील्ड यूज करोगे, फार्मूला फील्ड अपन या वैलिडेशन रूल्स यूज करोगे, तो सबसे पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो वैलिडेशन रूल्स के पहले रूल्स एंड रेगुलेशन, वैलिडेशन रूल्स का पहला रूल्स एंड इस तरह वैलिडेशन रूल्स, उसके पहला रूल फर्स्ट, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या रहेगा, चेक योर ऑब्जेक्ट where you work with validation। समझ में आ गया क्या? सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, चेक योर ऑब्जेक्ट की जगह पे डिसाइड, ये अच्छा वर्ड रहेगा। इतना क्लियर हो गया? डिसाइड द ऑब्जेक्ट वेयर यू वर्क विथ वैलिडेशन रूल्स। इतना क्लियर हो गया? ये क्वेश्चंस खुद को पूछोगे आप लोग। इज इट क्लियर? तो कभी आपको तकलीफ नहीं देंगे। सेकंड रूल क्या रहेगा, ऑन पिच फील्ड यू प्रोसेस वैलिडेशन रूल। समझ में आया क्या? सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, ऑन विच फील्ड यू प्रोसेस अ वैलिडेशन रूल। कौन से फील्ड के ऊपर वैलिडेशन रूल्स आप प्रोसेस कर रहे हो? डेटा फील्ड। यस और नो? जस्ट टेल मी। ये Yes. क्वेश्चंस आपको Yes, sir. पूछना है। ओके, आपको खुद को पूछना है कि कौन से फील्ड के ऊपर, और उसमें अब वैलिडेशन रूल, आपको वैलिडेशन मिल गया, आपको वैलिडेशन डेटा फील्ड आपको मिल गया। यस, डेटा फील्ड आपको मिल गया कि इस डेटा फील्ड के ऊपर करना है। तो उसके पहले उसको आपको चेक, फर्स्ट चेक इस तरह से प्रोसेस करना ही है। फर्स्ट चेक देयर डेटा टाइप। क्यों बोला मैंने यहाँ पे फर्स्ट चेक देयर डेटा टाइप्स ऑफ दैट फॉर्मूला फील्ड, दैट डेटा फील्ड। क्यों बोला हमने? क्योंकि आपके आपके ये जो रहते हैं ना वैलिडेशन रूल, फॉर्मूला फील्ड के जो
फार्मूला रहते हैं ना, वो डिपेंड रहते हैं हमेशा डेटा टाइप्स के ऊपर। आपको देखिए अकाउंट नंबर के ऊपर क्या बोला इन्होंने, बताइए। अकाउंट नंबर के ऊपर उन्होंने 7 डिजिट का रहना चाहिए। तो आपको ये जो लेंथ नाम का जो मेथड है ना, वो लेंथ नाम का मेथड सिर्फ टेक्स्ट नाम के डेटा फील्ड के ऊपर ही चलता है, नंबर वाले डेटा फील्ड के ऊपर नहीं चलता है। यस और नो? क्लियर हुआ कि आपको? यस सर। तो ऐसे वक्त क्या होगा, आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। आप लेंथ नाम का वेरिएबल यूज करेंगे तो वो यूज ही नहीं होता नंबर के ऊपर। तो ऐसे वक्त जब भी आप वर्क करोगे डेटा फील्ड, तो सबसे पहले डेटा फील्ड के ऊपर लगाना है, तो उसके सबसे पहले चेक करना है आपको कि डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप क्या है किसका? उस फील्ड का। इज इट क्लियर? ओके, ये आप लोग चेक करोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। समझ में आया क्या आपको? यस यस सर। ओके, क्योंकि कैसा है, आप ये नहीं करोगे तो क्लियर नहीं होगा आपको। उसके बाद थर्ड पोजीशन जो रहेगा आपका, थर्ड जो रहेगा आपका, यू रिमेम्बर वन थिंग, थर्ड जो रहेगा आप लोगों का, तो पहला आपको ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है। ओके, उसके बाद आपको लॉजिक लिखना है, लॉजिक, सॉरी, शो एरर मैसेज, show the error message on your स्क्रीन के ऊपर। कौन सा मैसेज शो करना है आप लोगों को, वो आपको डिसाइड करना है। क्लियर हो गया आपको? ऑन विच फील्ड, ऑन विच डेटा फील्ड। समझ में आ गया कि आपको कौन से डेटा फील्ड के कौन सा एरर, शो द एरर मैसेज ऑन द स्क्रीन ऑन विच डेटा फील्ड। तो ये आपको डिसाइड करना है कौन से डेटा फील्ड के ऊपर रहेगा। बहुत जनों को ये भी नहीं समझ में आता है। इज इट क्लियर? और यहाँ पे वो 2 क्वेश्चन पूछता है, बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वन इज दैट कि विच, ऑन विच फील्ड आपको उसको शो करना है, या वो बोलता है कि मुझे पेज के टॉप के ऊपर शो कीजिए करके। ओके, तो चलो मैं एक आपको सिनेरियो देता हूँ, वो आप लोग कीजिएगा। ओके, ये सिनेरियो मैं आपको देता हूँ। चलिए, ये सिनेरियो दे रहा हूँ, दिख रहा है आपको ये सिनेरियो? हेलो? यस सर। चलो लिखिए ये वैलिडेशन रूल। लेकिन देखो, वैलिडेशन दैट अकाउंट नंबर इज एग्जैक्टली 7 डिजिट्स। ओके, तो ये मुझे सॉल्व करना है, और वो ब्लैंक भी नहीं रहना चाहिए और 7 डिजिट रहना चाहिए। लेकिन मुझे एरर जो है ना, वो एरर टॉप के मैसेज के ऊपर आना चाहिए, पेज के ऊपर आना चाहिए। जस्ट सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर। चलिए देख लीजिए आप लोग। मैं स्क्रीन को ये कर रहा हूँ। चलिए, लेकिन मुझे पेज के टॉप लेवल पे चाहिए, पहले बता रहा हूँ। नहीं तो आप बोलोगे कि
हो गया सॉल्व? Yes, sir. सॉलिड? Yes, sir. चलिए, तो अभी तो एक जस्ट डेमो मैंने दे दिया आपको। हम लोग क्या करेंगे वेडनेसडे के दिन, लिसन हियर, हेलो, Yes, sir. वेडनेसडे के दिन, अभी मतलब परसों के दिन हम लोग एक ये देंगे। इसमें से कितने लोग जॉब करते हैं? हेलो हेलो, कौन जॉब करता है? तो मुझे ये बताइए, मैं वेडनेसडे के दिन 2 o'clock में ले सकता हूँ क्या आप लोगों का मॉक? हेलो, Yes, sir. तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आपको आज क्वेश्चन दूंगा, कुछ सिनेरियो दूंगा। क्लियर हो गया आपको? अभी मैं वेडनेसडे के दिन मैं एक वापस से फार्मूला फील्ड, देखो लिसन हियर, फार्मूला फील्ड, वैलिडेशन रूल्स, और उसके अंदर मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ कौन से, ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप और डेटा लोडर, ये 4 टॉपिक ऐड कर रहा हूँ। तो वेडनेसडे के दिन या गुरुवार के दिन ले लेते, चलो वेडनेसडे और एक दिन दे देता हूँ। तो आपको देखिए क्या मैं बताता हूँ, इंट्रोडक्शन मतलब स्टार्टिंग का, क्लियर हो गया आपको? उसके बाद नेक्स्ट कौन सा रहेगा आपका, नेक्स्ट वन जो रहेगा आप लोगों का वो रहेगा आपका फार्मूला फील्ड, एंड आफ्टर दैट वैलिडेशन रूल्स, उसके बाद रिलेशनशिप, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा रहेगा आपका, ओके, डेटा लोडर। यस, तो ये 5 टॉपिक के ऊपर हम लोग गुरुवार के दिन चलो 2 बजे के पास हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, चलेगा? हेलो, 2 to 4। यस सर। उसमें मैं सब अभी इसके बाद ये इस तरह से आप शांत बैठे हो वो नहीं चलेगा, ओके? हाँ, लेकिन जो 2 तारीख को बैठेगा, लेसन ये मतलब गुरुवार के दिन बैठेगा, उन्हीं को मैं आगे वाला देने के लिए बोलूँगा इंटरव्यू, नहीं तो नहीं। और उसमें आप बैठिएगा, ऐसे नहीं कि मैं वैष्णवी की 2 क्वेश्चन पूछूंगा, वैष्णव की ज़्यादा नहीं पूछ सकता, मैं सभी को क्वेश्चन पूछूंगा। इज इट क्लियर? लेकिन याद रखिएगा कि उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने सब दिए रहेंगे, तो इसलिए तब एक्सक्यूज नहीं रहेगा मेरे पास कि सर मैं क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, वो तुम्हारा लुकआउट, आपको बोलना पड़ेगा। ओके, वो क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको बोलना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो वो अपन देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग ये देखेंगे हम लोग, उसके बाद जैसे 2 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं क्या करूंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछूंगा, सभी को 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछूंगा सभी टॉपिक के ऊपर, ऐसा नहीं कि मेरा नंबर आया तो नहीं, ऐसा नहीं। ओके, उसके बाद 2 बजे से लेके आपका सिनेरियो चलेगा, आपका सिनेरियो बेस्ड ऑपरेशन चलेंगे। इज इट क्लियर? सिनेरियो डालूंगा और हर सिनेरियो को मैं 10 मिनट दूंगा। इज इट क्लियर? उसको मुझे वर्क करना है सभी के, यहाँ फार्मूला फील्ड के, वैलिडेशन रूल्स के, रिलेशनशिप के, और वो जो ये है ना, ये कम से कम 1-2 साल के एक्सपीरियंस, 2 साल के एक्सपीरियंस वालों को रहता है। तो अभी पूछेंगे तो इसके ऊपर कुछ नहीं पूछ सकते, और नया भी पूछेंगे तो आपके इतने हैंड्स ऑन हो जाओगे आप लोग कि आपको नॉलेज आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? और वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपका इंटरव्यू चलेगा। उसके बाद हमको वो टॉपिक के ऊपर देखना नहीं है, ज़्यादा ये नहीं करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मंगलवार को हम लोग वापस से शेयरिंग रूल्स, वर्क फ्लो और प्रोसेस बिल्डर, ये 3 टॉपिक के ऊपर करेंगे। वापस से 2 बजे बैठेंगे 5 बजे तक। क्लियर हो गया? पहले थ्योरी क्वेश्चन पूछते जाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद मैं क्या करूंगा, वर्क करने के लिए बोलूंगा, प्रोसेस बिल्डर के 2 टॉपिक्स दूंगा। ओके, उसके बाद प्रोसेस वर्क फ्लो के 2 टॉपिक्स दूंगा, और उसके बाद शेयरिंग एंड सिक्योरिटी के मैं वर्क करवाऊंगा। ओके, तो शेयरिंग एंड सिक्योरिटी में थ्योरी ज़्यादा है, ये कम है, प्रोसेस बिल्डर में वो ज़्यादा रहेगा आपको। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस करेंगे। और नेक्स्ट संडे को हम लोग क्या करेंगे, आपका रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड। तो इस तरह से आपका पूरा एडमिन खत्म हो जाता है। यस और नो? हेलो, Yes, sir. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर सैटरडे संडे हम लोग आपका पूरा इसका सैटरडे के दिन सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक, और संडे के दिन सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक आप लोगों का एडमिन के ऊपर वर्क चलेगा। ओके, एडमिन के ऊपर वापस पूरा, उस वक्त कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी क्वेश्चन मैं कैसे भी पूछूंगा आप लोगों को, आपको प्रिपेयर करके रखना है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट चालू करेंगे। डेवलपमेंट में थ्योरी क्वेश्चंस कम रहती है, तो उसके भी मैं आपको क्वेश्चन वाइज नोट्स दे दूंगा, सब प्रॉपर वर्क करूंगा, और उस तरह से आपको लेके चले जाऊंगा। चलेगा आपको? ओके, तो आज का अपन यही पे सेशन एंड करते हैं। बट कहने का मतलब यही है आप लोगों को, मैं सिंपल बता देता हूँ, इसके वीडियोस आप रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी, पहली चीज तो।
आपको खुद को रिकॉर्डिंग करना तो कर सकते हो, और आपको जो भी प्रोसेस है, लेकिन वही है कि इसको 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस जा रहा है तो एलन सर से बात करोगे और उस तरह से आपको वर्किंग करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको आप बिंदास इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। ओके। और और कंपनी के लोग भी आएंगे, वो भी आपके इंटरव्यूज लेंगे, लेकिन उस वक्त वो आपको बताएंगे नहीं, वो क्वेश्चन ही पूछेंगे, आपको उनके आंसर्स देना है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से अपन प्रिपरेशन चालू करते हैं। तो ये कमिंग गुरुवार के दिन आपको मैं इंट्रोडक्शन, रिलेशनशिप, फार्मूला फील्ड और वैलिडेशन हो, ये 4 टॉपिक्स अपन करेंगे, चलेगा? यस यस सर। यस वो सर। 2 बजे, हाँ बोलिए। सर मैंने बोला वो प्रोसेस बिल्डर वर्कफ्लो जो है इसका अपडेटेड वर्जन तो फ्लो है, तो अभी सेल्सफोर्स भी सजेस्ट करता है कि आप फ्लो बिल्डर पे काम अरे करो। बेटा, बट मैं बराबर है, अभी सब फ्लो पे, अभी भी बता रहा हूँ ना, अभी भी वर्क फ्लो चल रहे हैं पुराने वाले, प्रोसेस बिल्डर चल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ सिंपल, याद रखिएगा, सेल्सफोर्स में जितने नए प्रोजेक्ट नहीं आ रहे ना, उतने पुराने प्रोजेक्ट को ही अपडेट करना चालू है। समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? तो आज भी इंटरव्यू में सबसे पहले वर्क फ्लो ही पूछा जाता है, उसके बाद प्रोसेस बिल्डर, उसके बाद फ्लो पढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ओके। और आप लोग जाओगे ना इंटरव्यूज के लिए, सिर्फ मेरे को फ्लो आता करके बोलोगे ना, तो तुमको प्रोसेस बिल्डर और वर्कफ्लो पूछेगा ही। समझ में आ रहा है आपको? यस। यस सर। हाँ, कंपनी में अपन, कंपनी में देखिए, कंपनी के अंदर जाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एक बार आप कंपनी में चले गए ना, तो आपको प्रोसेस बिल्डर के ऊपर काम करने के लिए बोलेंगे ना, तो आपको 2-2 महीना 6-6 महीना प्रोसेस बिल्डर के ऊपर ही काम करने के लिए बोलेंगे। मालूम है क्या? आपको एलडब्ल्यूसी का वर्क दिया ना, तो आपको 2 महीने तो ट्रेनिंग देंगे एलडब्ल्यूसी के ऊपर, और बाद में साल साल भर आपको एलडब्ल्यूसी चाहेगा। तो जब अपन नेक्स्ट इंटरव्यू, जब कंपनी जब स्विच ओवर करते हैं ना, उस वक्त, अभी तो नए नए हो, जब कंपनी स्विच ओवर करते हैं ना, तो आप रिज्यूम में सिर्फ एलडब्ल्यूसी डालते हो, बस, बाकी कुछ नहीं डालते। वो पूछेगा क्वेश्चन तो, नहीं सर मैं 2 साल से एलडब्ल्यूसी में काम कर रहा हूँ। समझ में आ गया आपको? यस। यस हाँ, आप समझ में आ गया ना आपको? तो वो कुछ भी नहीं बताता, वो बोलता है मुझे प्रोसेस बिल्डर नहीं पता है बोलते, वर्क फ्लो नहीं पता है, फ्लो नहीं पता है बोलते, डेटा नहीं पता है बोलते, ट्रिगर नहीं पता है, हाँ एलडब्ल्यूसी पूछ बोलते तू। ऐसा रहता है, क्योंकि नो वन कैन बी मास्टर इन एवरी वन। क्लियर हो गया आपको? तो जो फ्लोज आता है ना, वो आया हुआ है, तो मैं फ्लोज भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, लेकिन इतना हैंड्स ऑन नहीं करना है आप लोगों को उनको, क्योंकि आप नए नए जा रहे हो, है कि नहीं? नए नए जाओगे, बोलेंगे कि यार तुमको फ्लोज आता है, क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा ये कर सकते हैं आप लोगों को। तो फ्लोज अपन बताएंगे उसको जितना है, और इंटरव्यू लेवल का मैं फ्लोज आपको पढ़ा दूंगा। नहीं तो फ्लोज पढ़ना तो 1 महीना लगता है फ्लोज के लिए। ओके, 1 महीना लगता है फ्लोज पढ़ने के लिए, क्योंकि फ्लोज में पूरा सेल्फोर्स वर्क करते हैं अपन। मालूम है क्या आपको? ट्रिगर की जरूरत नहीं है, बैच फाइल की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं होती है, सब अवेलेबल रहता है फ्लोज के अंदर। तो इतना बड़ा फ्लोज मतलब समझ जाइए, आपका डेवलपमेंट और एडमिन मिला के फ्लो बनता है आपका। तो इसलिए बता रहा हूँ। यस। तो वो अभी आया हुआ है, तो कहीं ज़्यादा ये नहीं करते वो लोग। समझे बेटा? ओके। तो अपन देखेंगे, और गुरुवार के दिन 2 o'clock बैठेंगे। लेकिन मैं वापस से बता देता हूँ कि जितने लड़के बैठेंगे, मैं उन्हीं को नेक्स्ट इसमें बैठाऊंगा। नहीं तो सिंपल सिंपल बता दीजिए कि अपन एक स्टैंडर्ड पैटर्न रख देते हैं, सैटरडे संडे ऐसे करना है, तो अपन सैटरडे संडे के दिन भी कर सकते हैं। तो अपन सैटरडे संडे लेते हैं क्या, बताइए मुझे? मतलब सभी को फ्री रहते हैं, सभी जन प्रॉपर वे से वर्क कर सकते हो। हेलो हेलो। यस सर। तो मुझे बताइए, अपन सैटरडे संडे करते हैं कि ये गुरुवार के दिन ले लेते पहला? ले लेते सर गुरुवार के दिन। ले लेते हैं। तो ये हाँ, ये थर्सडे को अपन ले लेते हैं, और बाद में नेक्स्ट जो रहेंगे ना, वो संडे को ले लेंगे हम लोग। ओके। और हफ्ते में 2-2 बार करके अपन ये एडमिन तो खत्म कर देते हैं, है कि नहीं? उसके बाद देखेंगे बाकी का। सर चलिए। आप नोट्स हाँ भेज दोगे ना इसके? हाँ हाँ, मैं नोट्स आपको कल भेजूंगा, आपको सबको नोट्स। ओके। तो वो प्रॉपर वे से नोट्स आप लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे एज वेल एज कुछ, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा और कुछ क्वेश्चन के ऊपर, तो वो क्वेश्चंस प्रॉपर वे से लिख के, प्रॉपर वे से, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड में डालोगे और वो मुझे सेंड करोगे। समझ में आ रहा है आपको? ओके। ओके, मैं उसको थैंक यू। चेक करूंगा, उसके बाद, हाँ, 10 क्वेश्चन दूंगा तो 6 क्वेश्चन मैं दूंगा, 4 क्वेश्चन के आंसर्स आपको निकालना आना चाहिए। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछूंगा, तो कंपनी में ऐसा तो नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वही चाहने वाले, एक आधा नया क्वेश्चन भी आ सकता है ना, तो आपको भी पता चलना चाहिए कि इसका आंसर कैसे फाइंड किया जाता है। यस और नो? लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी मेरे इतने लड़के इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं ना, तो 95% तो मैं जो पूछता हूँ वही चाह रहा है।
इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। बहुत डर के मत जा, बिंदास जा। एक तो कंपनी तुम्हारे लिए रहेंगी ना भाई, है कि नहीं अभिषेक? हेलो, यस सर। एक तो कंपनी आपके लिए रहेगी ना जो आपके लिए कैपेबल रहेगी। शुरुआत तो कर लीजिए, बाद में बाकी का देखते बैठेंगे। डर के मत जाओ, बस अपने को बहुत आता है, ऐसे करके जाओ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सिर्फ कम्युनिकेशन और प्रॉपर वे से वर्क कीजिएगा आप लोग, ओके? मैंने आपको पूछा था ना, यू आर कंफर्टेबल, तो रिलेटेड टू एडमिन और डेवलपमेंट, तो वो पॉइंट्स में पूछते हैं, तो कभी भी पॉइंट्स बताने का 8 और 9, ओके? कि आई एम कंफर्टेबल 8 out of 10 इन एडमिन एंड आई एम, आपको डेवलपमेंट अच्छा आता है, जैसे मुझे डेवलपमेंट का अच्छा आता है, तो यस आई एम कंफर्टेबल ऑन डेवलपमेंट रिलेटेड टू मार्क्स, तो 9 out of 10, ओके? 8 और 9 में ही खेलेंगे आप लोग, 10 में से 10 नहीं बोलोगे। 10 में से 10 बोला तो वो एचआर अपना हाई फाई पोटला खोल देगा ना, तो तुम मर जाओगे। तो अपन 80 to 90% मैं कैपेबल हूँ। क्लियर हो गया आपको? इस तरह से बोलोगे आप लोग। और एजुकेशनल प्रोजेक्ट के बारे में आपको 4 या 5 लाइन में ही आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है, 5 लाइन में। समझ में आ रहा है? ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं तुम्हारे प्रीवियस कंपनी में तुम कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। हाँ, उनको ये कंफर्म रहना है कि आपका लॉजिक कितना क्लियर है, वो चेक करते हो, ओके? तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, उसको इंटरेस्ट रहता है कि तुमने वर्क फ्लो किया तो कैसे किया, उसका लॉजिक उनको मेन रहता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट उस कंपनी दूसरे कंपनी में नहीं रहेगा ना। यस, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, तो वो एलन सर आपको बता देंगे। क्लियर हो गया आपको? चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। सर ये ऑब्जेक्ट में, अकाउंट ऑब्जेक्ट में मैंने लगाया, लेकिन ये चेक कहाँ से करेंगे? और ये शो नहीं हो रहा सर, सिर्फ एक ही शो हो रहा है, एनुअल रेवेन्यू वाला। हाँ, अकाउंट में क्या नहीं शो हो रहा है सर? जो हमने लास्ट वाला लगाया 7 डिजिट वाला, हाँ वैलिडेशन रूल। हाँ, तो वो आपको चेक सबसे पेज के ऊपर में आता है, आपको ऑन द टॉप ऑफ पेज एरर आता है आपका। सर ये किसी में भी, जैसे हमने 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट, तो उसमें अकाउंट में वर्क करेगा क्या? हाँ हाँ, सभी पे वर्क करेगा वो। एक्चुअली कैसा है, स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि तुमको पहले से पता नहीं रहता, उसमें मैं इतना हाई फाई यूज़ कर लूँगा ना तो तकलीफ जाता है आपको, ओके? इसलिए कैसा होता है, और ये जनरली कोई नहीं बोलता, कोई भी ट्यूशन क्लास और कहीं पे भी जाओगे ना तो कोई पढ़ाता नहीं है, ये लड़के खुद पढ़ते हैं, सिर्फ मैं ही आपका अपने बच्चों को बताता हूँ। तो हर जगह पे यूज़ होता है, हर जगह पे यूज़ होता है वो, ओके? आपका जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, हेलो, उसके अकाउंट में जाइए, उसके अकाउंट में ये पूरे वर्क फ्लो बनाओ, डेटा लोडर, डेटा फ्लो, सॉरी वैलिडेशन रूल बनाओ, रन करेंगे ना वो, ओके? ओके सर। तो ये गुरुवार के दिन मैं आपको पहले बता दूंगा, अपना प्रोजेक्ट ओपन करके मैं उसके अंदर पूरे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में ऐड करवा दूंगा, ओके? और उसके अंदर मैं एक एक को रन करवा के दूंगा, चलेगा आपको? ओके? यस सर। और ये सैटरडे संडे में सब लोगों का वर्किंग कराऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कैसे क्या वर्क करना पड़ता है, तो ओके? तो चलो, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, तो अपन गुरुवार के दिन 2 बजे मिलेंगे और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आपको पता है ना, रिलेशनशिप, डेटा लोडर, उसके बाद रिलेशनशिप, उसके बाद वैलिडेशन रूल, फार्मूला फील्ड और स्टार्टिंग, 5 आपको देना है। 5 के मैं नोट्स विथ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे देता हूँ, प्रिपेयर कीजिएगा, उस वक्त एक्सक्यूज नहीं चाहिए, ओके? 2 से 5 बजे तक आपका इंटरव्यू रहेगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय बाय।